something very exciting today, that is Viksit Bharat by 2047. It is a roadmap for India to become self-reliant, sustainable and inclusive nation by 2047. But this vision of India is not just about numbers. It is about to improving the life of every Indian citizen. India का vision है कि वो 2047 तक एक developed nation बनेगा, and gratefully this 2047 is century year of India's independence. Now, joining me and my friends, each one of us will discuss about how this vision impacts different sectors of economy. So now, as we know, agriculture is one of the major sector of India's economy. So now let's start our discussion. So as we know, agriculture is a sector in which most of our population depends. So it's very important to put more focus on agricultural sector. According to Viksit Bharat, by 2047, farming will become more advanced. Farmers will use some technologies like drone to check on their crops. They use some apps which help them to know about their plantation and harvestation of their crops. They use some machines which help to reduce their efforts and save their time. Accordingly, there will be also things like vertical farming, in which जो farmers हैं वो अपनी crop grow कर पाएंगे in tall buildings on the roof of their house instead of large big farms, जिससे कि हमारा space कम हो जाएगा farming के लिए और हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे एक स्मॉल स्पेस में, और इससे जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी बाय 2047 तक. उसके बाद इसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं दे विल लर्न टू यूज लेस वाटर, लेस केमिकल्स विच ऑल्सो प्रोवाइड बेनिफिट टू अवर एनवायरमेंट एंड वी कैन गेट मोर हेल्थियर एंड फ्रेशर फ्रूट्स, क्रॉप्स एंड ग्रेन्स. So according to you, Khushi, does it put any impact on small scale farmers? एक्चुअली जो ये इनिशिएटिव लिया गया है विकसित भारत बाय 2047, इसके अंदर मेनली फोकस किया जा रहा है हमारे लार्ज स्केल फार्मर्स पे. तो बेसिकली ये इम्पैक्ट तो डालेगा हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स पे भी, बिकॉज दे डो नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज और वी कैन से दैट दे डो नॉट हैव इनफ कॉम्पिटेंसी कि वो भी कम्पीट कर पाएँ लार्ज स्केल फार्मर्स से. बट फॉर दैट अवर गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अ पॉलिसी जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी स्मॉल स्केल फार्मर्स को, ताकि वो भी जनरेट कर पाए एम्प्लॉयमेंट, उनको भी एक मिनिमम इनकम का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. Great points, Khushi. Now I would like to listen views of Niharika on manufacturing and infrastructure development. Now let's talk about manufacturing and infrastructure. So इंडिया का जो विजन है एक डेवलप्ड नेशन बनने का, तो वो उसकी जो प्रैक्टिसेस है वो अभी से स्टार्ट कर दिए हैं. एज वी नो कि एआई डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं न्यू. सो इंडिया ने अपने हर एक इंडस्ट्री पे, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इक्वली फोकस किया है. सो as we know, we increases our exports and decreases our imports stuff from other countries. India is also increasing its infrastructure facilities. Smooth highways are made which connects all the parts of the country. Bullet train which cuts the travel time, and new airports are introduced in India. So इन सब चेंजेस की वजह से इंडिया में बहुत सारी जो कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, अपनी कंपनीज को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं इंडिया में, और इन सब वजह से इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है. So according to Niharika, क्या तुम हमें कुछ ऐसे रीसेंट एग्जांपल्स दे सकते हो फॉरेन कंपनीज के जो अभी एस्टेब्लिश हुई हैं इंडिया में? Yes, of course. Some of the example is Foxconn, which is established in southern India. Recently it is established in southern India, and it is a Taiwan electronic manufacturing company which mainly focuses on electronic products such as smartphones and computers. ये अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करता जा रहा है धीरे धीरे. और सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट युगांडा नेशनल एयरलाइंस. दिस एयरलाइंस स्टार्टेड इट्स इंडियन ऑपरेशंस ऑन 10 सितंबर 2023. निहारिका, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी रिसेंटली बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बने, एक वंदे भारत और एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे. तो तुम इस पे भी क्या अपने थोड़े थॉट्स बता सकते हो हमें कि क्या है? बिल्कुल. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे which connects Mumbai and Delhi, and it cuts the travel time from 24 hours to 12 hours. And Vande Bharat Express, it is established recently in 15 February 2019. It is the high-speed train operated by Indian Railway, and it is the part of Make in India initiative taken by government. एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशंस निहारिका. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस विजन का इम्पैक्ट इकोनॉमी के हर एक सेक्टर पे पड़ता है, तो अब अपन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बारे में कुछ बात करते हैं. Amazing. But to achieve all this, we also need a strong healthcare and education system. So हम देखेंगे कि 2047 के अंदर जितने भी हमारे इंडियंस होंगे उनके पास एक इजी एक्सेस होगा हेल्थ केयर का, वो इजीली उसको अफोर्ड कर पाएंगे और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ले पाएंगे. और उसी के साथ में हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी डॉक्टर्स वगैरह होंगे वो एआई टूल्स वगैरह, रोबोट मशीन्स, इनका यूज़ या हेल्प लेंगे सर्जरी या किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, और ये काफ़ी क्विकली भी होगी चीज़. और इसी के साथ वो अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे डॉक्टर्स लोगों की, ताकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में.
or which is very important but often ignored. On the other hand, we talk about education system. So schools and colleges will use smart boards, virtual reality and online tools to make learning fun and effective. अगर learning fun and effective होगी so वहाँ पे जो हमारे students होंगे उनको कुछ भी चीज़ learn करने में काफ़ी easy होगा और वो काफ़ी उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझेंगे भी, और इसी के साथ वो कुछ practical skills भी develop करेंगे जैसे कि coding, problem solving and teamwork, जो कि उनको उनकी future job के लिए काफ़ी अच्छे से prepare करेगा और help करेगा आगे. And this make India's workforce very skilled and competitive. Okay, so Muskan, we will have better understanding about this if you would like to connect us with your example. यस पलक. सो फर्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ केयर की. सो उसमें हमारे पास आयुष्मान भारत एक स्कीम है जिसके अंदर ये 100 मिलियन ऑफ फैमिलीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. एंड एजुकेशन में हमारे पास है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन. इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो मिलियंस ऑफ यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है. You are right, Muskan. But when we are growing, we have also need to protect our environment too. Yes. और इस पर्पज़ के लिए हमें बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो कंट्रीब्यूट करेंगी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और लाइक सोलर, विंड और इवन हाइड्रोजन. Just imagine every home and every industry are powered by renewable energy instead of gas and coal, which improve the overall environmental conditions. ठीक है. सो निशी, गवर्नमेंट ने हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो क्या तुम हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हो? Yes, absolutely. गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. लाइक वन ऑफ द पॉलिसी इज नेशनल फॉरेस्ट स्कीम 2018. इसके अंदर गवर्नमेंट ने हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल पीपल्स थे, उनको भी इन्वॉल्व करा था जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, कवर है, उसको इन्हेंस करने के लिए और फॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए. ये ओवरऑल जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और जो एयर पोल्यूशन है उनको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है और बहुत सारा इसने इम्पैक्ट डाला है हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे पॉजिटिवली. And the second policy is plastic waste management 2016, which is amended in 2018, in which जो हमारे सिंगल यूज प्रोडक्ट्स हैं लाइक प्लास्टिक बैग्स और हमारे जो कटलरीज हैं एक्सेट्रा, इन पे पूरा जितने भी प्लास्टिक वेस्ट था उसको रिड्यूस करने के लिए ये प्रोहिबिट करा गया इनका यूज़. और जो इसमें एक कंसेप्ट और दिया गया था रिन्यूएबल प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अंदर क्या था, जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनको रिस्पॉन्सिबल करा गया जो भी उनके प्रोडक्ट से वेस्टेज हो रहा है प्लास्टिक का. तो जैसा कि हम जानते हो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट ने, जैसे कि एक पॉलिसी आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019. तो आप तुम उसके बारे में हमें थोड़ा एलैबोरेट करो. तो हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी 2018, ये गवर्नमेंट लेके आई थी कि जिससे कि प्रमोट कर सके वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जिससे हमारा जितना भी एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके, जितने भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स हैं उनको कम कर सके, और जिससे हमारा जो भी सिटीज़ में पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो हेल्थ डिसीज़ हो रही है, उसको रिड्यूस कर सके. और ये ओवरऑल जो भी हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसको भी इम्प्रूव करेगा. ओके, सो स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स निशी. अब अपन एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में भी बात करते हैं जिसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे जैसे हमारा विकसित भारत का जो मिशन है टेक्नोलॉजी को लेके वो आगे चलता जा रहा है, चलते जाते जाते हमारा जो अभी 2025 तक अगर हम देखें तो इतना आगे बढ़ चुका है कि जहाँ पे हम ये इमेजिन नहीं कर सकते आगे आने वाले सालों में कि जहाँ हमारा फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होगा, उसके बाद बेटर स्मार्टफोन्स होंगे और हमारा जो द वे ऑफ लिविंग और हमारा काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा. एंड टेक्नोलॉजी विल बिकम मोर फास्टर. इमेजिन बेटर स्मार्टफोन्स, better computers with AI generating tools and many more things which will completely change your life. The AI जो है हमारा AI अभी लोगों को जॉब क्रिएट करवा रहा है, मतलब लोग जॉब से क्रिएट होते जा रहे हैं ताकि लोग और आगे जॉब कर पाएं. और मतलब जो हमारा जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स को देखें हम, जो हमारी रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट होती है वो अभी सिर्फ लाइट्स के थ्रू हम वहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं, उनके पास सिर्फ टाइमर होता है कि इतने टाइम. लेकिन आगे के आने वाले समय में हमारा जो 2047 का जो मिशन है उसको अचीव करने के लिए ये सब चीज़ें AI जनरेटेड हो जाएगी. अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो हमारा मिशन मंगल, जो हमारा मार्स का जो मिशन मंगल जो हमारा था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ. उसके बाद हमारा डिजिटल यूपीआई पेमेंट्स जो था वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ. इवन जब कोविड-19 का टाइम आया तब सारे पेशेंट्स हम खुद का टेस्ट ऑनलाइन ही तो कर रहे थे, डिजिटलाइज ही तो कर रहे थे. अगर वो टूल होता ही नहीं है हमारे पास तो हम कहाँ से कुछ कर पाते. इसीलिए जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती ही जाएगी. अभी सिर्फ देखी जाए तो टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक डिपार्टमेंट या टेक फील्ड के अंदर थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन आने वाले समय में 2047 तक ये बहुत अच्छी हो जाएगी. Beautifully said, everyone. Thank you all for your insights. It's clear that Viksit Bharat 2047 is more than just about economic growth. From smarter farming to better education, better healthcare, and better infrastructure, it has impacts on all. It has impact on every part of our lives. So, thank you, Nishi,
Thank you, Muskan, Niharika, Nandini, and Nishi for your thoughts, and a big thanks to our listeners for joining us on this journey to imagine India's future. Let's work together and make Viksit Bharat 2047 a reality. Until next time, dream big and take care. Thank you. मैं बोल रहा हूँ 1 2 तुम रुको, तुम अपनी